اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے لگا ہوں اس ہستی کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اوائل عمر میں ہی بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، جن سے اللہ تعالیٰ نے عقائد کے اوپر بڑا کام لیا۔ وکیل احناف میری مراد حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، جو کہ آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے، حضرت سے التماس کرتا ہوں اپنی مدبرانہ اور بہترین جو حضرت گفتگو فرماتے ہیں اس سے ہمارے دلوں کو منور۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 27 ستمبر 2018 16 محرم الحرام سن 1440 ہجری بروز جمعرات آپ کے نندرال ضلع چکوال کے اندر اس جگہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، میں بلا تمہید بات شروع کر رہا ہوں۔ عنوان ہے شہدائے کربلا کانفرنس۔ میری عادت کہ میں عنوان کے مطابق گفتگو کرنے کا پابند ہوں۔ کانفرنس کا عنوان سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام رفقاء کی یاد دلانے کے لیے ہمیں پکار رہا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور کردار آپ احباب نے بہت سنا ہوگا، لیکن میں نے انشاءاللہ آج کی گفتگو میں قرآن اور احادیث پاک سے باہر نہیں جانا، بنسبت شہادت کے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئیاں سنی تھی، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، تو میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، پارہ نمبر 22، صفحہ نمبر 1، آیت نمبر 33 میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ پلیتی کو دور کر دے، اہل البیت، پیغمبر کی گھر والیوں سے، ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہو۔ آیت نمبر 34 اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اس سے متصل اگلی آیت: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے یہ شان تو اتری ہے، لیکن اب جو تمہارے گھر میں قرآن اتر رہا ہے اس کو یاد کرنا شروع کر دو۔ من آیات اللہ والحکمہ
وہ قرآن کی آیات ہوں یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور احادیث ہوں، اسے یاد کر لیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رب العزت باریک بین بھی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ رب العزت کا علم اور خبر بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتری ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے رتبہ دیا ہے جسے کہتے ہیں اہل بیت۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں امہات المؤمنین، ازواج مطہرات کی شان بیان کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، جب یہ آیت اتری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اس آیت کی مزید بھی وسعت چاہتا ہوں، گنجائش مزید چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اسی آیت کی شرح میں احناف کی سب سے بڑی تفسیر جو 30 جلدوں میں ہے، امام محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر روح المعانی ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 198 ہے۔ فرماتے ہیں جب نبی کی بیویوں کے لیے اہل بیت بن جانے کی خوشخبری اللہ نے قرآن میں اتار دی تو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مزید اہل بیت بننے کی دعا کی کہ اللہ مزید بھی اہل بیت بنا دے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام میرے گھر میں تھے، قالت فی بیتی نزلت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میرے گھر میں تھے، یعنی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہیں۔ اللہ نے آیت اتاری ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت بن گئی ہیں، پیغمبر کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کا رتبہ مل گیا ہے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں وفی البیت فاطمۃ وعلی والحسن والحسین رضی اللہ عنہم، دروازے سے داخل ہوئے ہیں حضرت علی بھی، حضرت فاطمہ بھی، حضرت حسن اور حسین بھی، یہ 4 افراد داخل ہوئے۔ آیت اتر چکی تھی، نبی کی بیویوں کو مقام مل چکا تھا۔ فجللہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکسائن، حضور پاک نے اپنی چادر اٹھائی اور ان چاروں کو کہا آ جاؤ۔ علی بھی آ گئے، حضرت فاطمہ بھی آ گئیں، دونوں شہزادے بھی آ گئے۔ حضور پاک نے ان پر اپنی چادر کو پھیلایا، ثم قالا، پھر اللہ سے دعا کی، ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس، ان سے بھی پلیتی کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو بھی پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کی آیت، حضور پاک کی حدیث، دونوں ملائیں تو بات پتہ چلتی ہے نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، یہ بات اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ حضور پاک کے یہ نواسے، حضور کی بیٹیاں، حضور پاک کے داماد اہل بیت ہیں، یہ حضور پاک کا فرمان بتاتا ہے۔ خوشخبری کے مستحق، سلام عقیدت کے مستحق، خراج تحسین کے مستحق اہل سنت والجماعت ہیں، جو خدا کے قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی بیویوں کی بھی عزت کرتے ہیں، نبی کے فرمان کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کے خاندان اور نواسوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا اعلان ہے نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ نبی کا خاندان اہل بیت ہے، اس کا ذکر حضور پاک کے فرمان میں ہے۔ قرآن ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، نبی کا فرمان ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن نہ مانے ایمان سے ہاتھ پاؤں دھو بیٹھتا ہے، حضور کا فرمان نہ مانے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کا قرآن بھی مانتے ہیں، ہم مسلمان حضور پاک کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ نبی کی بیویاں حضرت عائشہ سے لے کر حضرت حفصہ تک تمام بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ نبی کی بیٹیاں، نبی کے داماد اور نواسوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اس کا ذکر حضور کے فرمان میں ہے۔ ہم دونوں مانتے ہیں، بات پوری کرنی چاہیے۔
अधूरी नहीं करनी चाहिए, बात मुकम्मल करें तो मसला निखर के सामने आता है। आधा माने आधा छुपाएं, ये यहूदी और मुनाफिकीन की सिफत है। हम मुसलमान हैं, यहूदी नहीं हैं, मुमिन हैं, मुनाफिक नहीं हैं। हम कुरान वाले अहले बैत भी मानते हैं, फरमान वाले अहले बैत भी मानते हैं। आप इसी रूहुल मानी की एक हदीस आगे उठाइए तो उसमें आपको मजीद नजर आएगा। मेरे भाइयों, वो हदीस पाक मैं इसी सफ़े से, इसी किताब रूहुल मानी की जिल्द 11 सफ़े 198 से पेश कर रहा हूं। तवज्जो रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने अहले बैत की मजीद वुसअत क्या बताई है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब ये मंजर मेरे सामने पेश हुआ, आयत उतरी अहले बैत नबी की बीवियों के लिए, लेकिन मेरी मौजूदगी में अल्लाह के रसूल ने चादर उठाई, नवासों पे डाली, बेटी पे डाली, दामाद पे डाली, मुझ पे नहीं डाली। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं तो पैगंबर की हरम हूँ, पैगंबर की इज्जत हूँ, पैगंबर के घर की मलका हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर की इज्जत हो, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बीवी हो, मोमिनों की मां हो, मुझे इस चादर के नीचे शामिल क्यों नहीं किया। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, अलस्तु मिन अहलिल बैत, ए अल्लाह के रसूल, मैं अहले बैत से नहीं हूं, आपने चादर पे मुझे नहीं रखा। चकवाल के दोस्तों, जरा तवज्जो से कान की खिड़कियां खोल के दिल को रास्ता दीजिए, दिल तक इस हदीस पाक को उतारिए, पता चलेगा अहले बैत का असल मिसदाक क्या है, अहले बैत में वुसअत किन की है, अहले बैत में पहले शामिल कौन है, बाद में शामिल किन्हें रखा गया है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने चादर को उठाया, अंदर दाखिल होने लगी, अल्लाह के रसूल से पूछा, अलस्तु मिन अहलिल बैत, मैं आपकी बीवी, आपकी इज्जत, आपकी हुर्मत, आपके बिस्तर की रहने वाली उम्मे सलमा, मैं अहले बैत में शामिल नहीं हूं। हुज़ूर पाक ने फरमाया, कैसे शामिल नहीं हो। फकाल इन्नकी इला खैरिन इन्नकी मिन अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक ने फरमाया, इन्नकी अला खैरिन, उम्मे सलमा तू तो बेहतर है, इन्नकी अला मकानिक, तू तो अपनी जगह अहले बैत बन चुकी है, तुझे रुतबा मिल चुका है, अब मैं चाहता हूं इनको भी रुतबा मिल जाए। तू तो बन चुकी है, ये भी बन जाए, बात पूरी करें। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुसलमानों, जो ऐब हो खुला बताओ। जब अहले बैत की आयत पढ़ी जाती है, हम सुन्नी मुसलमान भी समझते हैं इससे मुराद सिर्फ हजरत हसन और हुसैन है। मैंने अभी खुतबे में आयत पढ़ी, आपने सुभान अल्लाह जिस तर्ज पे कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह पता चला है, मेरी जिंदगी गुजर गई है। मैंने 1997 से बयानात शुरू किए थे, मेरी उम्र 11 साल थी। मैंने पहला बयान मौला आज़म तारिक शीर रहमतुल्लाह की जिंदगी में पंजगिरई के अंदर किया है, मेरी 11 साल उम्र है। उनके स्टेज पे आमद पे किया है, मुझे बहुत अच्छी तरह चेहरा पढ़ना, फेस रीडिंग मुझे पता चलती है। मैंने अहलुल बैत व जो तहरकुम ततहीरा पढ़ा है, मजमे ने क्या समझा मुझे अच्छी तरह पता है। तो मेरे भाइयों, मैंने इसीलिए मजीद वजाहत की है कि कुरानी अहले बैत कौन है, फरमानी अहले बैत कौन है, लेकिन मानते हम दोनों को हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह भी ईमान का हिस्सा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ईमान का हिस्सा है, कुरान भी ईमान का हिस्सा है, फरमाने पैगंबर भी ईमान का हिस्सा है, खुदा की बातें भी ईमान का हिस्सा है, मुस्तफा की बातें भी ईमान का हिस्सा है। वैसे ही अहले बैत हैं, कुरानी अहले बैत भी हम मानते हैं, फरमानी अहले बैत भी हम मानते हैं। आयत पढ़ी जाए तो पूरी बात, मैं एक बात कहा करता हूं, पूरा झूठ बोलना इतना खतरनाक नहीं होता जितना आधा सच खतरनाक होता है। आज हमारा आवाम का तबका आधे सच में मुब्तला है, आधे सच में, आधे सच के अंदर। हाँ अहले बैत, अहले बैत, और खुदा के बंदे अहले बैत का कभी तर्जुमा कर लो। मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं चल रहा हूं, मेरे साथ गाड़ी है, मैं नीचे उतरा हूं, पुलिस गाड़ी की चेकिंग करने लगी है। मैंने कहा रुको, मेरे साथ मेरे घर वाले हैं। इसका क्या माना है, मेरे साथ मेरे नवासे हैं? पहली मुराद क्या है? बीवी है। तो ये कैसे जुमला कह रहे हैं आप? पहली मुराद। हाँ, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने इन अहले बैत में अपने नवासों को शामिल किया। हम वो नहीं है हदीस को मान के कुरान छोड़ जाएं, कुरान को मान के हदीस छोड़ जाएं। मैं पूरी बात मानता हूं,
देखिए कुरान भी ईमान का हिस्सा है या नहीं है, हदीस भी ईमान का हिस्सा है या नहीं है। नमाज में हम कुरान भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और हदीस भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हदीस है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु हदीस है, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका हदीस है, समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द हदीस है, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला हदीस है। ये तो हम हदीस पाक नमाज में पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। तो इसलिए कुरान भी माने, हुजूर की हदीस भी माने, खुदा के बनाए हुए अहले बैत भी मानो, मुस्तफ़ा के बनाए हुए अहले बैत भी मानो। तो जब यूं माना जाएगा फिर कोई लड़ाई होगी, फिर कोई फड्डा होगा। मैं अभी मौलाना अब्दुल मालिक से कह रहा था, मैंने कहा काश मेरे जलसे में वो भी शरीक होते जो कहते हैं कि सुन्नी शान हुसैन बयान नहीं करते। जरा वो शरीकों में इन्हें समझाऊं कि यार आपके मजमे में क्या बयान होता है, हमारे यहाँ क्या बयान होता है। ये कुरान एक बहुत अच्छी बात है, वेलकम वेलकम। ये रूहुल मानी का पहला वाला। इस आयत मुबारक में हजरत हुसैन को अहले बैत कहा गया है। वयुत्ताहिरुकुम तत्हीरा का रुतबा, आयत तत्हीर के साए तत्हीर, तत्हीर की चादर जैसे हजरत आयशा को है वैसे हुजूर की तरफ से हजरत हुसैन को है, मिल गई है। जैसे कुरान कहते हैं युज़हिब अन्कुमुर रिज्स, पलीती आपसे दूर कर देनी है। वाकई हुसैन इब्ने अली से पलीती दूर है। हुसैन किन के करीब है और हुसैन के करीब कौन है? मैं देखता हूँ हजरत हुसैन, हजरत हसन और इनके वालिद 2.5 साल तक अबू बकर के पीछे मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर नमाजें पढ़ते हैं। हुसैन से पलीती दूर होती तो हुसैन इब्ने अली अल मुर्तज़ा को मानो ना, हुसैन यहाँ है, हुसैन पाकों के साथ है, पाक हुसैन के साथ है। 10 साल तक हजरत उमर के पीछे ये खानदान नमाजें पढ़ता है। 12 साल तक हजरत उस्मान के पीछे इस खानदान ने नमाजें अदा की हैं। और याद रखें हजरत हुसैन और हजरत अली अल मुर्तज़ा और हजरत हसन ने इनके साथ इतना प्यार रखा है। अगर प्यार न होता, एक सवाल करने लगा हूं, इमाम मस्जिद पर अगर मेरा इल्ज़ाम आ जाए कि ये मुसलमान नहीं है, बताएं हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उसके पीछे ईद पढ़ेंगे, बोलते नहीं है जुमा पढ़ेंगे, जनाजा पढ़ेंगे, उसका फतवा मानेंगे, हम अपनी मस्जिद बनाएंगे? बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मुझे दिखाएं 2.5 साल अबू बकर का दौर है, अली और अली के खानदान ने कोई एक मस्जिद अलहदा बनाई है? पूरे मदीने में किसी मस्जिद को सबूत नहीं दिया जा सकता। हजरत उमर का 10 साल की खिलाफत का जमाना है, इस अहले बैत ने पीछे ठहर के अलहदा कोई मस्जिद नहीं बनाई। हजरत उस्मान के 12 साल की खिलाफत है, इस खानदान ने उस्मान की इक्तदा मानी, अलहदा कोई मस्जिद नहीं बनाई। तो इसीलिए मुकम्मल माने, मुकम्मल सच, पलीती को दूर कर दिया गया है। याद रखें जहां हुसैन और अबू बकर हो, जहां हुसैन और उमर हो, जहां हुसैन और उस्मान हो, वहां पलीती नहीं आती। ये दोनों इकट्ठे हैं ना, ये दोनों इकट्ठे हैं ना, वहां पलीती नहीं आती, निजासत नहीं आती, गिलाजत नहीं आती, कुफर नहीं आता, फिस्क नहीं आता, मुनाफिकत नहीं आती। जहां ये दोनों इकट्ठे हो तो मानना तो पूरा चाहिए। अब मैं इसी हुसैन इब्ने अली की शान पे कुरान की दूसरी आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। पारा नंबर 29, सेकंड लास्ट सूरत, सूरतुल इंसान, जिसे सूरत दहर कहते हैं, इसकी आयत नंबर 6 उठाइए, रकू नंबर 1 उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मैं जानबूझ के इस आयत का तर्जुमा रोक रहा हूं, एंड पे तर्जुमा करता हूं, तवज्जो रखना। पहले जरा बताऊं ये आयत किस पैराग्राफ में उतरी, किस बैकग्राउंड में उतरी, किन हालात में उतरी, कौन से शाने वरूद और शाने नुज़ूल में उतरी है। अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर है। हजरत हसनैन बीमार हो जाते हैं, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की इयादत करनी है। ये दोनों बच्चे बीमार हैं। रूहुल मानी जिल्द नंबर 15 है, सूरत दहर की
इसी आयत की शरह में इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकम्मल वाक़या लिखा है। वो फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को, ये जिल्द नंबर 15 का सफ़ा 173 है, हुज़ूर पाक को पता चला मेरे ये दो जिगर गोशे बीमार हैं। हजरत अबू बकर को साथ लिया, हजरत उमर को साथ लिया, हजरत हुज़ैफा को साथ लिया, हुज़ूर पाक चल पड़े, चलो अली के घर जाते हैं और इसके जाकर बच्चों की इयादत करते हैं। ये अहबाब अली जुल मुर्तज़ा के घर आए हैं, बच्चों की इयादत की है, हुजूर ने बीमार पुरसी की है, अल्लाह के रसूल ने दुआ की है और ये हजरत वापस चले हैं। जाते वक्त हजरत अबू बकर और उमर और हजरत हुज़ैफा हजरत अली से कहने लगे, ए अली अगर बच्चे बीमार हैं तो आप अल्लाह के नाम पे मन्नत मान लें, अल्लाह के नाम पे नजर मान लें, अल्लाह इन्हें शिफा दे दे, मन्नत पूरी कर लेना। हजरत अली की इस बात को, हजरत अबू बकर उमर की इस बात को अली जुल मुर्तज़ा ने जाके घर में डिस्कस किया, हजरत फातिमा को बताया, बच्चे भी सुन रहे हैं। हजरत फातिमा के घर में उस वक्त 6 अफराद हैं, एक बंदे का नाम हजरत अली है, एक हजरत फातिमा है, एक हजरत हसन है, एक हजरत हुसैन है, एक गुलाम कंबर है, एक कनीज फिजा है। इन 6 बंदों तक बात हुई, 6 ने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात है, आपको मान लेनी चाहिए। तो हजरत फातिमा और हजरत अली जुल मुर्तज़ा ने आपस में तय किया, मन्नत ये माने हमें 3 रोजे रखने चाहिए, अगर बच्चे ठीक हो जाएं हम अल्लाह के लिए शुक्राने में 3 रोजे रखेंगे। इन 3 रोजों की मन्नत मानी है, बच्चों को अल्लाह ने शिफा दे दी है, ये दोनों बच्चे सही हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं, बीमारी खत्म हो गई है, अल्लाह की रहमत और फजल उतर आया है। अब इन तीनों ने रोजे, अब इन दोनों ने रोजों की कसम पूरी करने की नियत की है, सुबह सहरी पानी से की है। 6 बंदों ने रोजा रखा है, 2 शहजादों ने, एक खामद और बीवी ने, एक गुलाम और कनीज ने, इन 6 बंदों ने रोजा रख लिया है। अली जुल मुर्तज़ा शमऊन के यहाँ गए हैं। शमऊन उस वक्त का एक मालदार शख्स था, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम था, वहां कोई मजदूरी की है। हजरत अली जुल मुर्तज़ा ने वहां से अली जुल मुर्तज़ा को जौ का एक सा या एक शायर जो कुछ था वो एक पैमाना मिला है। हजरत अली जुल मुर्तज़ा मजदूरी करके लौटे हैं। हजरत फातिमा ने चक्की में उस बुर को पीसा है, पीस के आटा बनाया है, वो 6 रोटियों पर बना है। अफ्तारी का वक्त है, एक रोटी हजरत अली के सामने, एक हजरत फातिमा 2 बच्चों के सामने और 2 उन बच्चों के सामने, एक गुलाम और एक कनीज है, रोटी रख के बैठे हैं। इसी असना में अल्लाह ने इम्तिहान और आजमाइश का फैसला किया है। एक यतीम आया है, यतीम आकर दरवाजे पे कहता है, अना यतीम मिन यतामल मिस्कीन या अहल मुहम्मदिन, ए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की औलाद के घर वालों, मैं मुसलमानों के यतीमों में एक यतीम हूं, मैंने खाना नहीं खाया, आप मुझे कोई खाना खिला दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नत के खाने की खुशखबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नत का खाना खिलाएंगे। उस यतीम के अल्फाज ये है, अतअमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्ना, अल्लाह जन्नत के दस्तरखानों से खाना खिलाएंगे। मवाइद मायदा की जमा है, मायदा सुफरा दस्तरखान को कहते हैं। हजरत अली ने रोटी उठाई और इधर देखा, बेटा हसन भी देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये भी रोटी छोड़ दे। तो हजरत अली फरमान लगे, बेटा मुझे इतनी भूख नहीं है, ये रोटी उठाओ और इस फकीर को दे दो, मैं इंशाअल्लाह पानी से खा लूंगा। ये हजरत हसन की दिलजोई के लिए कहा है ताकि बच्चा परेशान न हो। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा मेरी रोटी भी लेते चली जाइए। ये 2 रोटियां उठाई तो ये 2 शहजादे अल्लाह के रास्ते में सदका करने पे पीछे नहीं रहे, अपनी रोटियां भी हजरत हसन ने साथ उठा ली, हुसैन ने भी दे दी। पीछे से 2 आवाजें आई हैं, कनीज और वो गुलाम कहता है, हमारी रोटियां भी ले जाओ, कल को ये ताना न दे कि अली के गुलाम कंजूस हुआ करते थे। ये रोटियां उठा के बेटे हसन ने उस यतीम को जाकर दे दी हैं। उसने रोटी लिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और चल पड़ा। इस खानदान ने ये रोजा पानी के साथ अफ्तार किया है, पानी के साथ अफ्तार। रात गुजर गई है, सुबह दूसरे रोजे की मन्नत है, फिर इसी तरह पानी से सहरी की है। सैयदना अली शमून के पास गए हैं, मजदूरी पे जो कुछ मिला है, शाम को वही मंजर है और इसी मंजर पे रोटियां सामने हैं। एक शख्स आता है, वो मिस्कीन है, अना मिस्कीनुम मिन मसाकीनिल मुस्लिमीन,
मुसलमानों के मिस्कीनों में एक मस्कीन हूँ, मुझे खिला दो, अल्लाह जन्नत के दस्तरखानों से खिलाएगा। यही मंजर इसके बाद दोहराया जाता है। और ये रोटियां आज दूसरा दिन है, 48 घंटे गुजर गए, ये रोटियां फिर उस यतीम मिस्कीन की झोली में डाल दी जाती हैं। 2 दिन गुजर गए, अब तीसरा रोज़ा है और आखिरी रोज़ा है। आजमाइश और इम्तिहान भी अपने आबोताब पे है। फिर सहरी हुई है तीसरे रोज़े की पानी के साथ, या घर में जो कुछ खजूर मुयस्सर थी या पानी था। तो फिर अली अल मुर्तज़ा मजदूरी से वापस आए हैं, फिर वही मंजर है, 6 रोटियां सामने हैं। अब एक यतीम असीर आता है, असीर कैदी, और वही सवाल करता है और यही 6 की 6 रोटियां उसकी गोद में पड़ जाती हैं। 72 घंटे अली के ख़ानदान ने पानी से रोज़े रखे, ताना नहीं दिया अल्लाह के रसूल के यहाँ जाकर कि आपके दीन का कलमा पड़ा तो ये हालत पहुँच गई। नमाजों में हज़रत अली की शिरकत हो रही है हुजूर के पीछे, और सब्र पे सब्र है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन चेहरे से अली अल मुर्तज़ा के गम को पहचाना और फरमाया, अली खैर है, आपके चेहरे पर भूख के आसार हैं। चेहरा भी तो कुछ बताता है, अब झूठ तो नहीं बोलना था, तो हकीकत अली अल मुर्तज़ा ने कह दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा और अली के साथ घर आए। घर में आके शहजादों की हालत देखी तो हैरान रह गए। हज़रत फ़ातिमा बेटी की हालत देखी तो बर्दाश्त ना हुआ। हुजूर बैठे हैं, इसी असना में अल्लाह के रसूल पर वही की कैफियत तारी होती और पसीना मुबारक उनके माथे से यूं गिरता है जैसे मोती के कतरे, मोती के टुकड़े गिर रहे हों। ये वही की कैफियत थी। इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, इन आयात की शरह में लिखते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पे वही उतरती है। जब वही की कैफियत ख़त्म होती है, जिब्राइल चले जाते हैं, हुज़ूर पाक फरमाते हैं, ऐ अली के ख़ानदान, आपके सब्र ने जिब्राइल को आसमानों से ज़मीन पर उतार दिया है। अल्लाह ने आपकी शान में आयत उतारी है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। सुनो, मैं अब आयत का तर्जुमा करने लगा हूँ। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए मिस्कीन को भी खाना खिला रहे हैं, यतीम को भी खाना खिला रहे हैं और कैदी को भी खाना खिला रहे हैं। ये हज़रत अबू दहदा के लिए भी आयत का शान नुज़ूल है और हज़रत अली के ख़ानदान के लिए भी है रज़ियल्लाहु अन्हुम। इन्हीं शानों में हुसैन इब्न अली शामिल नहीं है। बोलिए, शामिल नहीं है। मैंने कहा मैं कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने इसी तर्ज पे हज़रत हुसैन की शान आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। हम वो नहीं है जो कहें उधर से आवाज़ आई है और पता नहीं, ये भी नहीं पता कि आवाज़ किसकी आई है। ठीक है, मैं सनद के साथ बात कर रहा हूँ, दलील के साथ बात कर रहा हूँ, सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, और कोई सदाए बसहरा नहीं कर रहा, पढ़े लिखे मजमे में बोल रहा हूँ। आप शान हुसैन ज़िंदगी सुनते हुए आए हैं, इस तर्ज पे शान हुसैन बयान करनी चाहिए, ना कि झूठ और फसाद के तर्ज पे शान हुसैन बयान करनी चाहिए। अब तवज्जो रखना, ये कुरान पाक की नज़र में सैयदना हुसैन इब्न अली का मकाम है। मैं एक मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ीद भी आपकी खिदमत में रखता हूँ। आपका ज़ौक़ हाजिर है? सारे बताते नहीं हैं, सारे चुप बैठे हैं। ज़ौक़ हाजिर है? मैंने तो आपसे सुभान अल्लाह ऊँची नहीं कलवाई और न कलवानी है। भाई फारूक बने हैं, भाई फारूक का अपना मिजाज है, वो कहते हैं उनका अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है। ये सुभान अल्लाह कहना नफल है और नफल के ऊपर किसी को मजबूर नहीं किया जाता। ठीक है, हम न ऊँची सुभान अल्लाह के कायल हैं, न आहिस्ता सुभान। मैं तो नमाज में आमीन भी आहिस्ता का कायल हूँ। ठीक है, नेकी है, इसको आपने दिल में कहना, आपके लिए सवाब है, कहो नहीं कहना न कहो, मेरा इसमें क्या लेना देना। तवज्जो रखना, हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मकाम की बात कर रहा हूं। तवज्जो, नजरान के ईसाई आए हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को कहा आपको नबी नहीं मानते, नबुव्वत की दलील चाहिए। नबुव्वत की दलील क्या है? बहस हो गई, दलाइल चल पड़े। जब इनकार कर दिया, आक़िब बिन आमिर बड़ा है, उसने थोड़ा मोहलत का वक्त मांगा और फिर उसके बाद आयत उतर आई है, नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना। पूरी आयत है,
सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाह। आओ ईसाइयों, अगर तुम हुजूर पाक की नबुव्वत की सदाकत के कायल नहीं हो, अपनी जानों को लाओ। पैगंबर अपनी जान को लेकर आते हैं, अपनी औलादों को लाओ। हुजूर पाक औलादों को लाते हैं, यानी खानदान को। अपनी औरतों को लाओ, हुजूर अपनी खानदानी औरतों को लेकर आते हैं। जब दोनों बैठ जाओगे एक मैदान में, उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ दुआ के लिए हाथ उठाना। अल्लाह जो हम में झूठा है, कज़्ज़ाब है, गलत कहता है, काफिर है, नबुव्वत सादिका का मुनकिर है, उसके ऊपर अपना अजाब नाजिल फरमा दे। एक पर अजाब नाजिल आ जाएगा। आओ ईसाइयों, अगर हुजूर पाक की नबुव्वत नहीं मानते, ये मुबाहला हमारे साथ कर लो। कुरान की आयत उतरती है, तवज्जो, इस मुबाहले को आपने सुना होगा, लेकिन अधूरा, आधा सच न बोलो, पूरा सच बोलो। आधा सच मुकम्मल झूठ से ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। मैं मुकम्मल सच आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यह पारा नंबर 3 है, सूरत आले इमरान है, आयत नंबर 60 और 61 है। इस आयत की शरह क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबाइले के लिए, सफर के लिए तैयारियां शुरू की है। तो आज यार लोग आधी बात बताते हैं, कहते हैं हजरत हसन हुसैन, हजरत फातिमा और अली इनको लेकर हुजूर चले थे तो वो भाग गए थे। और पूरी बात करो, अधूरी बात न करो। किन किन को लेकर चले थे, कौन कौन बंदा उसमें शामिल था, कौन कौन औरत उसमें शामिल थी, कौन कौन से बच्चे उसमें शामिल किए गए थे। मैं कोई अखबार नहीं पढ़ रहा, डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, अखबार जहां और जंग अखबार के सफात नहीं पढ़ रहा। कुरान करीम की तफसीर, तफसीर अद्दुर्र मंसूर फी तफसीर अल मासूर, जिल्द नंबर 2, हाफिज जलालुद्दीन सयूती अल मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी रहमतुल्लाह अलैह की शरह, इस तफसीर की, कुरान की शरह से पेश कर रहा हूं। जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 221। व अखरज इब्नुल असाकिर अन जाफर, इसके साथ, ये सनद के साथ इन्होंने वाकया लिखा है। फरमाया मुबाइले की नौबत नहीं आई थी, मुबाइला हुआ नहीं था, अभी हुआ चाहता था। तैयारियों में था कि उन काफिरों के कुछ जासूस आए और उन्होंने देखा हुजूर इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने जब इन बंदों के चेहरे देखे जिनको हुजूर ने इकट्ठा किया, उसने जाके अपने लोगों को कहा, और खुदा की फटकार हो तुम पे, इस नबी से मुबाइला मत करना, नबी उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अगर ये तुम्हारे मुकाबले में आ जाए, आसमान से आग बरसेगी, तुम जलकर बिस्म हो जाओगे, जलकर राख बन जाओगे। इनके मुकाबले में न जाना, इनसे माफी मांग लो, जिजिया का टैक्स दे लो और माफी मांग के जान छुड़वा लो। वो बंदों को हुजूर इकट्ठे कर रहे हैं जिनकी चेहरे पे सदाकत लिखी हुई है, जिनके चेहरे पे सच्चाई लिखी हुई है, जिनके चेहरे पे अल्लाह की ताईद नजर आ रही है। हम उन चेहरों को देख के आए हैं। वो काफिर भाग गए थे, उनमें कौन कौन शामिल थे? मैं मानता हूं हजरत अली थे, मैं मानता हूं हजरत फातिमा थी, मैं मानता हूं हजरत हसन थे, मैं मानता हूं हजरत हुसैन थे। लेकिन बात पूरी करें, कोई और भी थे या नहीं थे? कुरान की तफसीर नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाह की आयत, सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 बताती है। उसकी शरह में हाफिज इब्न हाफिज अब्दुर्रहमान सयूती ने लिखा है, फरमाया हुजूर पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह अगर मुबाइला होता आप किन किन को बुलाते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं किन्हें बुलाता? फरमाता, बजाआ बी अबी बकर व वलदिही, अबू बकर तुम भी आओ, मुकम्मल औलादों को लेकर आओ। व बे उमर व वलदिही, उमर तुम भी आओ, अपनी औलादों को लेकर आओ। व बे उस्माना व वलदिही, उस्मान तुम आओ, अपनी औलादों को लाओ। व बे अली जिन व वलदिही, ए अली तुम भी आओ, अपनी औलादों को लाओ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के 2 ससुर हैं, इनमें 2 दामाद
दामाद हैं अबू बकर और उमर, हुजूर के ससुर हैं अबू बकर की बेटी आयशा, उमर की बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, पैगंबर की हरम और इज्जत हैं। इनमें दो दामाद हैं, एक उस्मान है एक अली है। उस्मान दोहरे दामाद हैं, अली इकारे दामाद हैं। उस्मान को दो बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम पैगंबर की बेटियां मिली हैं, अली को एक बेटी सैयदा फातिमा मिली है। हुजूर चाहते थे मुकम्मल खानदान जाए, मैं भी जाऊं, मेरे ससुर भी जाएं, मेरे दामाद भी जाएं, इनकी औलादें भी जाएं। इनमें भी हजरत हुसैन शामिल है या नहीं है? तो बात पूरी करनी चाहिए या अधूरी करनी चाहिए? हजरत हुसैन की शान सुनाएं, लेकिन इस तरह ना सुनाएं कि किसी और की शान घटा दे। हुजूर फरमाते हैं मेरा रुतबा सुनाओ, लेकिन ऐसे न सुनाओ कि अंबिया का रुतबा घटा दो। ऐसे न सुनाओ कि हजरत मूसा, हजरत ईसा, जकरिया और यूसुफ, दानियाल और याकूब, इब्राहिम और इस्माइल, इनके रुतबे घटा दो। का ऐसे न सुनाओ, ऐसे सुनाओ जैसे सुनाने का हक है। शान हुसैन ऐसे बताओ कि बाकियों की इज्जत न घटाओ। मुकम्मल शान हुसैन सुनानी चाहिए। शान सैयदना हुसैन इब्ने अली पे सुनन इब्ने माजा हदीस पाक के सियासत्ता की हिस्सेदार किताब, जो आलिम दीन को 8वें साल दौरे हदीस में पढ़ाई जाती है। मैं सुनन इब्ने माजा से रिवायात हदीस हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनना। हजरत याला बिन मुर्रा अल आमिरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, हुज़ूर पाक के सहाबी हैं। फरमाते हैं हद्दसहुम अन्नहु खरजहुम माअन नबी खरजू माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला तामिन दौलहु। हुज़ूर पाक तवज्जो है या नहीं है? कोई साथी इधर उधर देख रहे हैं तो आप देख लें, फिर मैं बात शुरू करूं। आप मुझे देखें, तवज्जो मेरी तरफ। मैंने बात कर जानी है, फिर आपने मौलाना अब्दुल मालिक को फरीद कसर से बुलवाना है, भाई आपके मौलवी साहब क्या कह गए थे, तो उसमें कसूर मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। तवज्जो मेरी तरफ रखे, तवज्जो स्लिप ना करें। तो मुझे देखेगा या इधर उधर देख लें? तवज्जो। कहते हैं हुजूर पाक एक दावत में जा रहे थे, हम सहाबा साथ हैं, रास्ते में देखा फैजा हुसैन यलअब फी सिक्की, मदीना की गलियों में हजरत हुसैन और कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल शुरू था। फतक़द्दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाम अल कौम, हुजूर पाक लोगों से आगे चल रहे हैं, सहाबा से आगे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब गए, वबसत यदाई, यूं अपने बाजुओं को फैलाया हजरत हुसैन के लिए। अल्लाह, जिसके लिए हुजूर बाजू फैलाएं, यूं बाजुओं को फैलाया और हजरत हुसैन को बुलाया, का इधर आओ। फजाल अल गुलाम युफिर्रुहा होना वहा होना। हजरत हुसैन बच्चे थे तो बचगाना आदत के मुताबिक कभी इधर भागने लगे, कभी उधर भागने लगे। यानी जैसे वालिद अपनी औलाद को बुलाए, और जैसे औलाद होती है ना, वो वालिद के साथ मजाक में कभी इधर और कभी इधर, कि मैं आपको नहीं पकड़ देता, तो हजरत हुसैन कभी इधर और कभी इधर होने लगे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ाहिकुहु हत्ता अख़ज़हु। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तर्ज बदल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत हुसैन के साथ यूं हंसी मजाक शुरू की। ये नहीं हजरत हुसैन करीब आते कि शायद नाना जान पकड़ेंगे तो हुजूर हाथ छोड़ देते, ताकि वो ये यकीन कर ले कि मैं पकड़ने वाला नहीं हूं, वो ये समझे। वो करीब आते, पकड़ते और छोड़ देते, ताकि उसका एतमाद बने कि मैं नहीं पकड़ रहा, बज़ाहिर यही बात है। तो जब हजरत हुसैन को यकीन हो गया कि नाना जान नहीं पकड़ रहे, तो बिल्कुल करीब आए तो हुजूर ने पकड़ लिया। जब एकदम पकड़ लिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजाल एदा यदैहि ताहत ज़करिही, एक हाथ मुबारक को हजरत हुसैन की ठोड़ी के नीचे रखा, वल उखरा फी फासिरासिही, और दूसरा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गर्दन का पिछला हिस्सा जिसे गुद्दी कहते हैं, इस जगह पे रखा। फकब्बलहु, हजरत हुसैन को चूमा और फकाल, यूं हदीस इरशाद फरमाई, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन,
یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ جو جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ حسین سبتم من الاسباط، حضور علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت حسین ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ، اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کو ان سے کتنا پیار تھا۔ یہ آیت کے بعد میں نے حدیث شروع کی ہے، آیات کے بعد احادیث۔ حضور علیہ السلام کو حضرت حسین سے کتنا پیار ہے۔ اگلی روایت سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں سبیح مولا ام سلمہ، وہ بتاتے ہیں حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا، یہ زید ابن ارقم بھی صحابی ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے جس وقت بیت اللہ میں ابھی کھلے طور پہ عبادت کا آغاز نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی عبادت اور مشورے دار ارقم میں ہوتے تھے۔ پڑھا ہے؟ دار ارقم یہ جگہ تھی جہاں حضور علیہ السلام کے مشورے ہوتے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ صحابی کا گھر تھا، اسے دار ارقم کہتے تھے۔ یہ زید بن ارقم اسی صحابی کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا پیار آپس میں کتنا تھا، دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنا رہے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کو لڑانا فساد ہے، دونوں کو ایک کر کے سنانا ایمان ہے۔ تو حضرت زید ابن ارقم صحابی اور صحابی کے بیٹے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان چاروں کو فرمایا، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، تم چاروں سے جو دوستی رکھے گا میں محمد پہلے اس کو دوست بنوں گا، جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جو تم سے دشمنی کرے گا میں اس کے لیے سلامتی کا پیغام ہوں جو تمہارے ساتھ امن رکھے، اور اس کے لیے جنگ کا پیغام ہو جو تمہارے ساتھ جنگ کرے۔ یہ کوئی خاص موقع ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہوتی ہے۔ ایک موقع سود کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سود کھانے سے بعد نہیں آتے، سود کھاتے ہو باز نہیں آتے تو اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ یاد رکھنا یہ سود خور نہیں ہوتے، یہ سور خور ہوتے ہیں۔ سود اور سور ایک ہی وزن ہے، سود کھاؤ یا سور کھاؤ یہ ایک ہی وزن ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، جس کا نام اللہ نے یوں لیا ہے نا، تو وہ سور کھاؤ یا سود کھاؤ یہ ایک برابر ہے۔ آج کل سود کی بنیاد پہ کاروبار شروع ہیں، لعنت بھیجیں اس حرام پیسے پہ جو سود سے آئے، 2 پیسے 4 پیسے وہی حلال کے ٹھیک ہیں جو حلال راستے سے تو آ رہے ہیں۔ نہ سود کھائیں نہ سود کھانے دیں، نہ سود کھائیں نہ سودی سودی کھانا کھانے والوں کے ساتھ تعلقات بھی نہ رکھیں کسی قسم کا۔ سودی آج کل لوگ بینک میں جاتے ہیں نا، پانی نہیں پیا کرو بینک میں۔ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ، سیونگ نہ کھلواؤ۔ سیونگ اکاؤنٹ سود والا ہے، کرنٹ سود کے بغیر ہے۔ سیونگ مت کھلوانا، کرنٹ کھلوانا۔ اور بینک میں جا کے وہ پانی پلائیں تو پانی بھی نہ پینا، کیونکہ ان کے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو کولر استعمال ہوتا ہے وہ کولر کی بجلی کا بل بھی بینک کے سود کے پیسوں سے ادا ہوتا ہے۔ آج کل اتنا لوگ بوتلیں ٹھوکی پہ کیا ہو سب جوس پی ہو چاہے جوس، سبحان اللہ، اٹھنے رونے بورے رونے، ہم نے یہاں پانی نہیں پینا تھا یہاں جوس پینا شروع کر دیا گیا ہے کسی قسم کا۔ میں بینک جاتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، ضرورت کے درجے میں جاتے ہیں نا، یہ اتنی ضرورت ہے کوئی اندر مان کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے بعد جا کر جوس پیتے ہے کوئی؟ پیندے بھی پانی شانی پیتی آؤ، تو ایسی جگہ سمجھ کے جانا، نہ سود کھانا نہ سودیوں کے ساتھ معاملات رکھنا۔ مجھے بینک میں کوئی دوست کہہ دے نا بھائی حضرت پانی، میں کہتا ہوں جی نہیں۔ اجی پانی، اجی نہیں۔ کوئی زور سے کہے تو میں کہتا ہوں حرام پانی پینے نہیں آیا، بس یہ مجبوری میں 2-4 لمحے ٹھہر گیا ہوں کہ آج کل چوروں کا زمانہ ہے، مال چوری ہو جاتا ہے تو 2-4 روپے ہیں چلو یہاں رکھ دو، وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں، ورنہ نہیں رکھنا۔ ایسا کوئی بندہ کاروبار والا ہو نا، ہم اس کو اجتماعی قربانی میں بھی ساتھ نہیں شامل کرتے۔ اجتماعی قربانی میں بھی بینک والا تے کو نال رلاؤ چا گاں دے وچ، یہ ساری گاں دی لوگ تھی ویسی، اس کو شامل نہیں کرنا۔ بھئی تو اپنا لے لا گے نا بھائی،
तू जान ते बकरा जाने, तू जान ते लेला जाने, अपना लेला, अपना उगाओ, अपना खाओ, नाराज ना होना। कोई बैंक का बंदा बैठे हो वो नाराज ना हो, मेरा काम है हक बताना, मैं हक नहीं बताऊंगा तो फिर मैं और गूंगा शैतान एक जैसे हैं, फिर हम गूंगे शैतान हैं। कोई नाराज होता है या राजी हो जाए, कोई खुश होता है या परेशान होता है। सूद सूद है, ये सूद खोर नहीं है, ये सूर खोर है। अल्लाह इनसे महफूज रखे, अल्लाह ऐसी चीज़ों से बचा ले। याद रखो, इन चीज़ों से बंदा अपने आप को बचाए। क्या खामखा से हराम पैसे में चंद रोज़ा ज़िंदगी है, नाम हुसैन का लेते हैं और यारी सूद खोरों के साथ, नाम उमर के लेते हैं और खाना सूद है। लाख लानत है फिर उस ज़िंदगी पे जो सूद खाए और दीन का नाम ले। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सूद खाना माँ के साथ जिना करने के मुतरादिफ है या नहीं है? बोलियो बोलिए, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सुनी आपने हदीस है? तो फिर भी हम सूद खाएंगे। आप हाथ उठा के कहो, हम हुसैनी भी बनेंगे, सूद से भी बचेंगे। बनोगे हुसैनी, सूद से बचोगे, सूदियों पे लानत करोगे। हम हुसैनी भी हैं और हम सूद से भी हाथ खड़े करके सूद से भी बचेंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला। ये बात दरमियान में आई है तो इसलिए मैंने कह दिया है। मेरी आदत नहीं है मैं दरमियान में कोई लिपटी लोपटी बात कर जाऊं, कोई नरमी कर जाऊं। बात वो है जो बंदा पूरी करे। तो सूद के मौके पे क्या फरमाया? फ़अज़रू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर दो। एक बंदा कुछ दिनों पहले मेरे पास आया कि मौलाना मैं हज पे जाना चाह रहा हूँ। उसने जब अपना मामला बताया तो हज उस पर फ़र्ज था, तो मैंने जाते हुए उसको हज का मामला तो फतवा बता रहा था। मैंने पूछा भाई आप करते क्या? जी मैं बैंक मैनेजर हूँ। मैं कि खुदा द ना मने सूद वाले पैसे थे हज ते न वने। अजी क्यों? मैंने कहा हराम पैसा नेकी पे लगाने के साथ नेकी नहीं मिलती, गुनाह लाजिम हो जाता है। हज न मिलसी बुज्जा मिलसी, यूं ना समझना मेरा हज हो जाएगा, हराम पैसा वहां न लगाना। हमारे वालिद मोहतरम की कब्र पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। इनकी अकाउंट में किसी जगह से सूद आ गया था। ये 1994 की बात कर रहा हूँ। वालिद साहब को नहीं पता चला, तीसरे महीने जाकर पता चला तो वो 3 लाख रुपए थे। मैंने अपने वालिद को, ये हज़रत हुसैन मदनी के मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की ज़ियारत करने वाले, हज़रत थानवी को देखने वाले, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्दों में मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे तड़पते और रोते देखा है, तहज्जुद में रोते देखा है कि मेरे साथ क्या हो गया। अब खुद ही आया, मैंने तो नहीं लिया, मैं इसको क्या करूं। शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह, ये हज़रत मदनी के शागिर्द थे, फाज़िल देवबंद थे। ये दोनों मेरे वालिद साहब और ये बैठ के घंटों रातों रात सोचा करते थे क्या करें, इसका हल क्या निकालें। क्या कुछ हाँ भाई गरीब बंदे तो घंटा सवाब थी सी, तो सूद के पैसे को सवाब की नीयत से लगाना तो कुफ्र है, तो कैसे लगाएं। जो इनका फैसला हुआ था, तफसील का वक्त नहीं है, उन्वान कुछ और है, मैं आखिरी बात करके ये बात चलाता हूँ। इनका फैसला ये हुआ था कि इसको घर का गंद समझो, अच्छी चीज़ ना समझो, घर का गंद समझो और इसे घर से निकालो, किसी गरीब को दे दो, सवाब की नीयत न करो। क्यों? हराम पैसे पर सवाब की नीयत करने से बंदा काफिर हो जाता है। तो सवाब की नीयत नहीं करना, घर का गंद समझ के निकालना है। जिसने ले लिया है तो उसका हमारे ऊपर एहसान है भाई, इसको कबाड़ समझ के किसी को दे दो। यूं करके इन्होंने गरीबों के घर ढूंढे, लिस्टें बनाई और उनको जाकर दिया। 1994 में 3 लाख, आज के 3 करोड़ रुपए थे। आज से 24 साल पहले की बात कर रहा हूं, 24 नहीं 22 साल पहले की बात कर रहा हूं। अंदाजा लगा लो, इतने सालों पहले। तो इससे खुद अंदाजा लगा लें कि क्या मसला जाकर बनता है। तो इसलिए सूद के मसले से बचेंगे ना। जज़ाकल्लाह। एक तो इस मौके पर फरमाया, और एक हदीस और है अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग। वो क्या है? हुजूर फरमाते हैं मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया अल्लाह ने कि जो मेरे वली के साथ ज्यादती करेगा उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। ऐसा है या नहीं है? खामोश हो गए हो, है या नहीं है? और तीसरा ये मौका है जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अली, ए फातिमा, ए हसन और हुसैन, अना सिल्मुन लिमन सालमतुम, मैं उसके लिए सलामती का पैगाम हूं जो तुम्हारे लिए सलामती लाए, और उसके लिए जंग का पैगाम हूं जो तुम्हारे साथ जंग लाए। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन की सीरत के बाद थोड़ी शहादत पे बात कर लेते हैं कि शहादत हुसैन अहदीस सहीहा की नज़र में क्या है। ये मजमा उज़ ज़वाइद है, मजमा उज़ ज़वाइद हदीस पाक की किताब।
इमाम नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह अलैह, अल-मुतवफ़्फ़ा 807 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 9 है। ये 12 जिल्दों पर मुश्तमिल बैरूत से छपी है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत 215 जिल्द नंबर 9 से शुरू होती है। 80 रिवायात हजरत हुसैन के बारे में मौजूद है, जिनमें अक्सर रिवायात शहादत हुसैन की। मैं अपने सामने घड़ी रख के बैठा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो रहा है, मैं शहादत के चंद जुमले पढ़ूंगा। मुझे बर वक्त बिठा दिया जाए और खुला टाइम दे दिया जाए तो 3 घंटे भी मुश्किल नहीं है। 10 मुहर्रम को हमने 2.5 से 3 घंटे पर शहादत हुसैन पढ़ी है, उसकी वीडियो इंटरनेट पे आ चुकी है। आप यूट्यूब पे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखेंगे तो आपको हमारा वहाँ पर पेज मिलेगा, आप उसको तफसील से सुन सकते हैं। मैं इस पर चंद जुमले शहादत हुसैन के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो रखना और सही अहादीस से तवज्जो है। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। पंद्रह 15,112 नंबर की रिवायत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा से, जिल्द नंबर 9, मजमुअ ज़वाइद सफ़ा 217। हजरत नजी अल हज़रमी फरमाते हैं, ये अलीजुल मुर्तज़ा के दोस्त, शागिर्द, कारकुन और मुरीद हैं, ताबिई हैं। कहते हैं अन्नहु मा सारा अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं हजरत अलीजुल मुर्तज़ा के साथ था। वकाना मुतहराती ही, मैंने हजरत अलीजुल मुर्तज़ा के लोटा मुबारक वुजू के लिए उसका इस्तावे मुबारक को उठाया हुआ था। फलम्मा हाजिया नैनवा, जब हम इराक के शहर नैनवा जिसे आजकल मूसल कहते हैं वहां से गुजरा, वह मुंतलिकुन इला सिफ़ीन, हजरत अली के साथ हम सिफ़ीन के लिए जा रहे थे। फनादा अलीयुन, मुझे हजरत अली ने फरमाया, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, इस्बिर अबा अब्दुल्ला, ओए नजी अल हज़रमी रुक जाओ, जरा रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ चीज बताता भी हूँ, कुछ सुनाता भी हूँ। बिशक्किल फिरात, इस दरियाए फुरात के किनारे रुक जाओ, जरा आगे न जाना। नजी हज़रमी कहते हैं मैं रुक गया, जब दरियाए फुरात के किनारे पे रुका। कुल्तु वमा ज़ाका या अमीर अल मुमिनीन, मैंने अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अमीर अल मुमिनीन बताइए आपने मुझे क्यों रोका? फरमाया, आओ मैं तुम्हें अपने दौर का वाकया सुनाऊं। एक वक्त था जब मैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ था। यह अलीजुल मुर्तज़ा 30 साल पहले का वाकया सुना रहे हैं हुजूर के दौर का। यह अलीजुल मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत है। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा के दौरे खिलाफत का सन 38 या 37 हिजरी है और यह बात सन 6 हिजरी की, सन 5 हिजरी की, सन 8 हिजरी के वक्त की है। तकरीबन 30-31 साल पहले की बात सुना रहे हैं। हजरत अली कहते हैं, नजी अल हज़रमी दखलतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, मैं एक दिन अल्लाह के रसूल के पास गया था। मैं जब हुज़ूर पाक के कमरे में गया, मैं क्या देखता हूं, ऐनाहु तज़रिफान, हुज़ूर पाक की आंखों से आंसुओं का समंदर जारी है। हुज़ूर रो रहे हैं। मैं करीब हुआ, मैंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह अग़ज़बका अहदुन, आपको किसने गुस्सा दिलाया, आपका दिल किसने दुखाया, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? मा शानु ऐनैका तफीजान, मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं, इन आंखों से आंसू पे दर पे बह रहे हैं, क्या बात है? हुजूर पाक ने फरमाया, अली सुनो, बल कामा मिन इंदी जिब्राइल अलैहिस्सलाम कबलू, तेरे आने से कुछ लम्हे पहले इस जगह पे जिब्राइल आकर खड़े हुए थे और मुझसे कुछ बातें की हैं। मैंने कहा क्या? कहते फहद्दसनी अन्नल हुसैन युक्तलु बिशत्तिल फुरात, मुझे जिब्राइल ने बताया, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरियाए फुरात का किनारा होगा और आपके नवासे हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। फकाला हल्लक इलैया अन उशम्मिका मिन तुरबतिही, जब मैंने यूं जिब्राइल को देखा, तुम क्या कह रहे हो? तो जिब्राइल ने अर्ज किया, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, अगर आप
चाहते हैं तो मैं वहां की मट्टी उठा के आपके सामने ले आऊं। मैंने कहा कुल तो नाम जी ले आइए। तो फमद्दा यदाहु, जिब्राइल ने हाथ यूं खींच के मेरे सामने किया। फकबज़ा क़ुब्ज़तम मिन तुराबिन, एक मट्टी एक हाथ की मुट्ठी में भरी हुई थी, मुझे दे दी है। फलम अमल फ़ातानीहा, मुझे देनी। फलम अमलिक ऐनय्या अनफाज़ता, मैं आंखों पर अपनी कुदरत न रख सका और ये बहने लग गई। शहादत हुसैन को इत्तेफाकी बात नहीं है, कोई वक्ती हादसा नहीं है, इसकी पेशन गोई पहले है। हादसा न समझना, ये राह जाते हुए इत्तेफाकी बात न समझना, ये मामला पहले से तय था। और फिर इमाम नूरुद्दीन हैसमी ने यूं लाइन लगाई है रिवायात की। एक रिवायत मजीद कहते हैं हजरत उम्मे सलमा के घर एक बार वाकया हुआ। ये रिवायत बहुत लंबी है, मैं इसका टुकड़ा पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, या उम्म सलमा वदियत इंदकी हाज़िही तुरबा, ये मट्टी उम्मे सलमा अपने पास बतौर अमानत रख ले। फशम्महा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत रसूलुल्लाह ने उस मिट्टी को बार बार सूंघा। वकाला, फरमाया, वैहा करबम व बला, वो करबो बला की जगह क्या होगी। कालत, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं फिर हुजूर ने फरमाया, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलिमी अन्नबनी क़द क़ुतिल। उम्मे सलमा, जब इस मट्टी का रंग खून का रंग हो जाए तो फिर इसका माना समझ लो कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया। क़ाल फ़जअलतुहा उम्मु सलमा फ़ी क़ारूरा, हजरत उम्मे सलमा ने उसे शीशी की बोतल में डाल दिया। और सुम्मा जालत तंजुरु इलैहा कुल्ल यौम, फिर हर दिन उसे देखा करती थी और अलमारी में रख दी। इन्न लयौमन अज़ीम तहव्वलनी दमन, जब हजरत हुसैन शहीद हुए तो वो खून आलूद हो गई थी। हजरत हुसैन शहीद हुए, वो खून आलूद हो गई थी। एक रिवायत इस पर मजीद है, वो ये हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का पता कैसे चला। कि हजरत हुसैन की शहादत का पता ऐसे चला कि मेरे घर के उस कमरे में जिसमें ये मट्टी मौजूद थी, एक वाकया हुआ। कोने में क्या हुआ, उम्मे सलमा कहती हैं, समिअतु नूहल जिन्नी मुज़्ज़ क़ुबिज़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला लैला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, उसी कोने से मैंने जिन्नात के रोने की आवाज़ सुनी, फिर कभी न सुनी। और फिर कब सुनी, जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा इस दुनिया से गया। तो फिर मुझे शक पड़ा कि ये रोने की आवाज़ आज फिर आ रही है, क्या मसला है। मैंने अपनी बांदी से कहा, इस इक़रिजी असाली, उस बोतल को निकाल कर ले आ। फ़अख़बरत अन्नहु क़द क़ुतिल, इतने में खबर पता चली कि वो शहीद हो गए हैं और वो मट्टी जर्द हो चुकी थी। मेरे भाइयों, ये मामला इतना तवील है, इतना बड़ा है कि ये इसमें बाज बातें ऐसी हैं ना, खुदा की कसम ज़बत के बंधन वहां टूट जाते हैं। एक रिवायत इमाम नूरुद्दीन हैसमी ने मजीद लिखी है, कहते हैं जब सैयदना हुसैन इब्न अली को इन जालिमों ने शहीद किया और इनकी गर्दन को इन्होंने अपने साथ काट के रखा था, ऐन उस वक्त ये नबीज़े तमर पीने लगे ये कातिल बैठ के। तो फ़खरजा इलैहिम कलमुम मिन हदीदिम मिन हाइतिन, दीवार से एक कलम निकला और वो कलम खुद ब खुद चलना शुरू हुआ। फ़कतब बिसत्रि दमिन, खून से कलम लिख रहा था। वो लिखा हुआ लफ्ज़ ये था, अतरजु उम्मतुन क़ुतिलत हुसैनन शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, ओए हिसाब के दिन से तुम्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत का डर नहीं है, आज उसके नवासे को मार रहे हो ज़ालिमो। फ़हरबू व तरकुर रास सुब्मा हरजू, ये भाग गए डर के, फिर रोते रोते फिर ये वापस आए तो फिर जाकर सर उठाकर शाम भिजवा दिया। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ज़र खरीद कातिल थे, ये वो मलून उम्मत लोग थे जो इनके साथ इस हद तक हुआ। और इन्होंने सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या किया। कहते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिस दिन शहीद हुए, मा रफ़िया बिश्शाम हजरुन यौम क़त्ल हुसैन इब्न अली इल्ला अन दमिन,
کہا ہم یوں پتھر اٹھاتے تھے تو ہمیں اس کے نیچے یوں خون نظر آتا تھا، یوں پتھر اٹھاتے تھے تو خون نظر آتا تھا. اس حد تک یہ ظلم تھا. اور اس پر واقعہ لکھا یہ امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کے داماد لگ رہے ہیں. لم تکن فی، حضرت ابو ہریرہ کے داماد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لم تکن فی السماء حمرا حتی قتل الحسین، آسمان پہ سرخ آندھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، حضرت حسین قتل ہوئے تو سرخ آندھیوں کی ابتدا ہو گئی تھی. جس وقت حضرت حسین کو ان لوگوں نے شہید کیا، ابھی قبیل کہتے ہیں لما قتل الحسین انکسفت الشمس قصفا، یہ اس وقت سورج گرن ہو چکا تھا. حتی بدت الکواکب نصف النہار حتی ظننا انہا ہیا، کہتے ہیں رات کی تاریکی آدھے دن میں رات کی تاریکی نظر آنے لگ گئی تھی کہ ہم نے ستاروں کو چمکتے دیکھا، ہمیں یقین کہیں یہ ہو گیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہ منظر ہمارے سامنے پیش ہو گیا. میں نے کہا نا میں ان روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں جو قتل والی ہیں، حقیقتاً اس پر ضبط کے بندھن بعضوں کا ٹوٹ جاتے ہیں. چلو میں ایک سنا دیتا ہوں، سنو، یہ میں دل پہ پتھر رکھ کے پڑھ رہا ہوں، ذرا جگر تھام کے سننا. ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں، ظلم کی انتہا کی ہے. حضرت لیث ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں یا بچیاں بچی تھیں، حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ، یہ دو بیٹیاں تھیں حضرت حسین کی، یا ایک ہی مرد بچا تھا جس کی عمر 21 سے 23 سال تھی، جس کو حضرت زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو جب ملک شام بھیجا، قتل ظلم نہیں تھا اتنا کہ آگے یہ ظلم دہرایا. کہتے ہیں اس بندے نے کہا قتلوا بنی و اصحاب الذین قاتلوا ما، لشکر تیار کرو، یقال له طف، طف کی زمین سے چلے، یہ طف کربلا کے ساتھ کی زمین ہے. وانطلق بعلی بن حسین، کہا اب علی بن حسین کو بلاؤ، حضرت امام زین العابدین کو ساتھ رکھا. و فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی سے بڑی حضرت فاطمہ بنت حسین کو بٹھایا. و سکینہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین کو بٹھایا. الی عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کے پاس. وعلی یومئذ قد بلغ، حضرت امام زین العابدین کی عمر بلوغت کی بڑی عمر تھی. فبعث بہم الی یزید، انہوں نے یزید کے پاس لشکر بھیجا. فامر، اور اس ظالم نے حکم کیا بسکینہ فجعلها خلف سریرہ، کہ جہاں سکینہ بیٹی حضرت حسین کی اس چھوٹی بیٹی کو بٹھاؤ، اس کے سامنے ایک چارپائی رکھو، اس چارپائی پہ اس کے والد کا کٹا ہوا سر رکھو اور اس راستے پر سفر شروع کراؤ. لئلا ترى راس ابیہا وذوی کرامتہا، اور حسین کے خاندان اور ان بچوں اور اولادوں کو بٹھاؤ تاکہ یہ اولادیں اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھتی رہے. یہ ظلم کم ہے کہ آپ نے اس کے باپ کو مار دیا؟ یہ کم ہے کہ آپ پھر بچوں کو دکھا بھی رہے ہیں. وعلی بن حسین فی غل، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی امام زین العابدین، کہتے ہیں ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں رکھا ہوا تھا. فوضع راسہ، اور ان کے سامنے ان کا سر سامنے رکھا ہوا تھا. علی سنیت الحسین، حضرت حسین کے دانت مبارک ان کو بھی نظر آ رہے تھے. آؤ دیکھو. اور یہ اہل بیت ہے، ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، فصبر جمیل، فصبر جمیل. یہ 2200 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ کوفہ سے دمشق، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. آپ گوگل میپ پہ کبھی سرچ کر کے دیکھیں کہ سفر کتنا بنتا ہے. اور وہ سفر کوئی جہاز کا نہیں تھا، وہ کوئی گاڑیوں کا نہیں تھا، وہ اونٹوں کا تھا. اس ایک ایک منٹ پہ کتنی راتیں آئی ہوں گی، کتنے دن آئے ہوں گے، کون سے نشیب اور فراز آئے ہوں گے، اور ان بچوں کی کیفیت کیا ہوگی. جب میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں نا تو خدا کی قسم دل دہل جاتا ہے کہ ان ظالموں کے سینے میں دل بھی تھا. اور جن شخصیات کو اللہ کے رسول نے جنت کا وارث قرار دیا ہے، آپ ان کو اور ان کی اولادوں کے ساتھ یہ ظلم دہرا رہے ہیں. گویا میں یوں کہوں، جس کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے، جس کے گھرانے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور کی سفارش کو امید رکھتے ہیں، ظالموں یہ ظلم بھی ہوتا ہے.
یوں یہ یزید کے دربار میں پہنچے. یاد رکھو ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں. میں نے اپنے والد محترم سے چھوٹی عمر میں پوچھا تھا کہ ابو ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں, تو ابو نے کہا تھا بیٹا ہم اس وقت ہوتے تو ہماری لاش حضرت حسین کے گروہ میں پڑی ہوتی. یزید کے دربار میں تو کہتے ہیں فَزَقَلَ عَلَى یزید أَن يَتَمَثَّلَ بِبَيْتِ الشِّعْرِ. یزید نے اوپر سے حضرت حسین کی تعریفیں شروع کی اور بچوں کے دل بہلانے کے لیے باتیں شروع کی, اور اس نے بھی سر درمیان میں رکھوا دیا دکھانے کے لیے. تو اس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہا یہ تقدیر کا فیصلہ تھا جو ہو چکا ہے, اور تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی منشا سے ہوتا ہے. یار صبر دیکھو حسینی گھرانے کا, صبر کو بھی رونا آ جائے جہاں پر, صبر دیکھیں. اور اس وقت وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, پھر وہ سنایا. پھر اس کے بعد حسین ابن علی کے بیٹے علی جو ابن حسین نے قرآن کی آیت پڑھی, اور آیات پڑھ کے کہا کہ رتبہ تو یہ ہے. پھر پوچھا کہ اے یزید لو رآنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلولین لأحب ان یجیلنا, یہ بتا اگر حضور کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے, کیا حضور کے دربار میں آج ہم بچے یوں ہوتے اور ہمارے ہاتھ یوں ہتھکڑیوں اور ہمارے پاؤں بیڑیوں میں ہوتے تو حضور کیا کرتے؟ تو کہتے ہیں یزید نے کہا رسول اللہ کھول دیتے. تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک کہا ہے. تو کہا پھر ان کے کہنے پر ان کی بیڑیوں کو کھول دیا گیا. پھر اس کے بعد یزید نے اس سر کے ساتھ ان کو واپس بھجوایا, اور واپس بھجوا کر یہ مدینہ آئے ہیں. مدینہ بھی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے. ایک روایت میں ساتھ لانا بھول گیا ہوں, البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں ہے, حضرت حسین کا سر مبارک مدینہ آیا, حضرت حسن کی قبر ہے, حضرت فاطمہ کی قبر ہے جنت البقیع میں, اور حضرت فاطمہ کے ساتھ ہی حضرت حسین کے سر مبارک کی قبر بنائی گئی ہے. میرے بھائیو یہ موضوع بڑا طویل بھی ہے, دردناک بھی ہے, المناک بھی ہے, کربناک بھی ہے. ہر دل کا کام نہیں ہے اس کو برداشت کر جانا اور بیان کر جانا. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں حسینی بنائے. ایک بات کرو میرا دل بھی ٹھنڈا ہو, اس ملعون عبید اللہ بن زیاد کا حشر سناؤں. جامع ترمذی اٹھائیں, جلد نمبر 2 اٹھائیں, وہاں پر موجود ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد مرا تھا تو ابھی اس کی چارپائی پر ابھی اس کا سر کاٹ کے ایک جگہ مختار نے رکھا تھا جو اس کا قاتل تھا. تو لوگوں نے کہا انہا قد جاءت, یوں آوازیں پڑی آ گیا. تو ایک راوی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, کیا آ گیا. میں نے یوں دیکھا تو ایک سانپ اور اژدہا آیا, اور وہ آتے ڈھونڈتے اس قاتل حسین عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس آیا, اور اس کی کان سے یوں کریدا راستہ بنایا اور نتنوں سے نکل آیا, پھر نتنوں کو کریدا اور دوسرے کان سے نکل آیا. یہ اس کا عذاب قبر سے پہلے شروع ہو چکا تھا. اللہ کردار حسینی کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سیدنا حسین کے صدقے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اہل باطل اعتراض کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جنگ یعنی حضرت علی کے ساتھ جنگ کرے اس کی نبی کے ساتھ جنگ ہے, تو میرے معاویہ نے جنگ کی تھی. بات تو بالکل ٹھیک آپ بظاہر نہیں کر رہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولیے. حضرت حسن کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ جنگ رہتی نہیں. جس جنگ کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ جنگ رہتی نہیں ہے. نمبر 2, یہ جنگ نہیں تھی, یہ غلط فہمی کا معاملہ تھا, تو بعد میں جا کر معاملہ کھل گیا تھا. آپ غلط فہمی کی لڑائی کو جنگ کا نام دیتے ہو, یہ آپ کا کام ہے. ہم صلح کی بات بتاتے ہیں, یہ ہمارا وطیرہ ہے. بات پوری کریں, یہاں بھی بات ادھوری نہ کریں. جزاکم اللہ تعالی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا